اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معاشرے کے اندر اہم مسئلہ اکثر لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو اچھی رہنمائی مل سکے۔ ایک لفظ ہے، جب ہم عام ملاقات کرتے ہیں تو بولتے ہیں السلام علیکم، اور بسا اوقات بولا جاتا ہے السلام علیکم، اور اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سلام علیکم آپ بولتے ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ گالیاں ہیں اور بدتمیزی ہے وغیرہ وغیرہ، تو السلام علیکم ہی درست لفظ ہے۔ تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ دین اسلام اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں سلام علیکم بما صبرتم یہ بھی آیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام نوح فی العالمین۔ اس طرح کے قرآن پاک میں کافی ساری جگہوں پر صرف لفظ سلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ لفظ سلام جو ہے یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، معاذ اللہ نہ ہی کوئی اس میں بدتمیزی والی بات ہے، نہ ہی کوئی بد دعا والی بات ہے، اور نہ ہی یہ کہنا سلام علیکم یہ کوئی غیر شرعی ہے یا درست طریقہ نہیں ہے۔ جن فقہا نے لکھا ہے کہ السلام علیکم یہی بولنا چاہیے، اور کامل جو ہے یہی ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اذا سلم احدکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو کیسے کہنا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فل یقل، تو اس طریقے سے کہو السلام علیکم۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے اذا سلم، جب تم میں سے احدکم کوئی ایک دوسرے کو سلام کرے یا بولے تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ، تو بس وہ کہے السلام علیکم۔ تو یہی جو ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو کامل حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، کامل الفاظ یہی ہیں السلام علیکم، جب بھی آپ کسی سے ملے تو ایسے ہی ادا کریں۔ لیکن اگر کسی نے سلام علیکم کہہ دیا یا سلام علیکم کہہ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ جو بیسک مسئلہ ہے پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے سلام علیکم، اور ایک ہوتا ہے سام علیکم، اور یہ یا السلام علیکم، یہ وہ الفاظ ہیں جو یہودیوں کی زبان میں بطور گالیوں کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، یعنی گالی کے زمرے میں آتے تھے۔ السلام علیکم یہ سین کے ساتھ بھی السلام علیکم، السلام نہیں السلام علیکم، اور اسی طرح سواد کے ساتھ بھی ہے سام علیکم۔ یہ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں داخل ہوئے کچھ یہودی کچھ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو کچھ یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا السلام علیکم، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں آ کے مخاطب کیا، فقالوا انہوں نے کہا قالوا السلام علیکم، سلام علیکم، یعنی سین کے ساتھ سین الف میم کے اوپر پیش ہے سلام علیکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے ایسے سلام پیش کیا، حالانکہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ السلام علیکم ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے انہیں جواب دیا وعلیکم۔ تو اب یہودیوں کے نزدیک یہ جو ہے سلام علیکم، یہ جو یہودیوں کی لغت میں ہے یا یہودیوں کے نزدیک اس وقت یہ بد دعا تھی یا گالیوں کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کا ایک معنی بنتا ہے یعنی تم پر سلام علیکم، تم پر موت واقع ہو جائے، تم مر جاؤ، یہ اس کا ایک معنی بنتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کہا وعلیکم، تم مر جاؤ۔ آپ اندازہ کریں ان کی بد دعا، یہودیوں کی بد دعا
اللہ تبارک व तआला कबूल फरमाएगा। उन अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का ही इनकार करते हैं, लेकिन नबी की निकली हुई ज़ुबान से निकली हुई बद्दुआ तो यहूदी तबाह हो गए हैं, यहूदी बर्बाद हो गए हैं, यहूदी वाक़यातन मर गए हैं, हलाक हो गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से इरशाद फरमाया, वा अलैकुम, तुम पर भी मौत वाक़ हो। इस पर हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा सदीक़ा आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि तुम पर मौत हो, तुम पर अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा सदीक़ा को रोका और हज़रत आयशा सदीक़ा को रोक कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इन्होंने बोला है इसका जवाब ये है, वा अलैकुम, तुम पर भी वो वाक़ हो जाए। तो लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान ये जो बात है, हमारे बिलखुसूस यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो भी बस औक़ात जो सफाई करने वाले हैं, आप गुज़रते हैं उनके पास से तो वो आपको कहते हैं सामु अलैकुम। अगर तो आपको समझ नहीं आती कि वो सामु अलैकुम कहते हैं या अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। हर दो सूरतों में आप ये बात, अगर वो सामु अलैकुम कहते हैं तो आपने कहना है वा अलैकुम, ताकि अगर वो आपको बद्दुआ दे रहे हैं तो आपने जवाब में यही कहना है जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वा अलैकुम। लेकिन अगर वो ये भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो ये बात याद रखें कि सलाम जो है ये दुआ है, किसी को सलामती की दुआ देना। तो अगर इस नीयत के साथ वो आपको सलाम करते हैं कि आप मुसलमान हैं, आपको सलाम किया, तो आपने जवाब में वालेकुम कहा तो आपने भी उनको दुआ दे दी, यानी आप भी कह रहे हैं कि आप पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती नाज़िल हो या तुम पर भी सलामती हो, जो सलाम का माना है। तो जो यहूद व नसारा हैं या ईसाई हैं या गैर मज़ाहिब लोग हैं, उनको दुआ नहीं दी जा सकती, उनको दुआ नहीं देनी चाहिए। मर जाएं उनके पीछे फातिहा नहीं की कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं नीयत के साथ आप कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे इस्लाम की नेमत की सलामती अता फरमाए, तो मुमकिन है। लेकिन अगर वो आपको सलाम कहते हैं तो उनसे पूछें ज़रूर कि ये कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। हम गुज़रते हैं मुसलमान, आप काम काज कर रहे होते हो और आप कहते हो सामु अलैकुम। अगर सामु अलैकुम कहते हैं तो ये गालियाँ हैं यहूदी ज़बान के अंदर, और फिर इसका माना जो है मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। तो सलाम को आम करने का भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सलाम जो है मोहब्बत बांटता है, इसको आम करना चाहिए। एक बात ये भी याद रखें कि बिलखुसूस जो नमाजी हज़रात हैं, आप जब मस्जिद में आते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बुलंद आवाज़ से ना कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, जैसे ही मस्जिद में दाखिल होंगे तो बुलंद आवाज़ से कहेंगे। ये बात याद रखें कि जब भी आप मस्जिद में आते हैं ना या मस्जिद में दाखिल होते हैं तो आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर कोई शख्स नमाज में मसरूफ़ है या तस्बीहात में मसरूफ़ होता है, कोई दुआ में मसरूफ़ होता है, तो मस्जिद में दाखिल होने के साथ आपने ऐसे बुलंद आवाज़ से सलाम नहीं कहना, बल्कि चुपके से जाएं, बैठ जाएं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि लोग फारिग बैठे हुए हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उन पे आप सलाम कह सकते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे हैं, कोई नवाफिल अदा कर रहा है, कोई सुन्नतें अदा कर रहा है, कोई हाथ खड़े किए दुआ मांग रहा है, अगर किसी ने अस्सलामु अलैकुम कह भी दिया तो जो शख्स किसी इबादत में मशगूल है उस पे लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है कि वो उसका जवाब दे। आखिरी बात समाप्त कर लें, एक मैं कौल आपके सामने नकल कर देता हूँ। हज़रत हसन बसरी जो हैं, ये ताबी हैं, हज़रत हसन बसरी, और बड़े मोतबर शख्सियत हैं। आप फरमाते हैं ला तुसल्लमू अलल मुतकब्बिरीन फ़इन्न फ़ी ज़ालिका ताज़ीमन लहुम। आप फरमाते हैं कि जो मुतकब्बिर लोग होते हैं, मुतकब्बिर लोगों को सलाम न करो, क्योंकि इससे उनकी ताज़ीम होती है। जो मुतकब्बिर इंसान है, मिजाज का कड़वा इंसान है, तकब्बर करता है, गुरूर करता है, तो उसको सलाम मत करो, इसलिए कि आप उसको सलाम करोगे तो वो समझेगा मैं बहुत बड़ा हूँ, उसके दिल में और तकब्बर पैदा होता है, उसके दिल में नरमी पैदा नहीं होती। तो किसी मुतकब्बिर के सामने जाके झुकना, किसी मुतकब्बिर को सलाम करना, हाँ ये नीयत हो कि मैं सलाम करूँगा तो मुमकिन है इसका जो तकब्बर है, गरूर है, इसको समझाने के लिए मेरी कुर्बत होगी तो मैं इसको समझा लूँगा, तो ये एक अलग नीयत है। लेकिन आप फरमाते हैं ला तसल्लमू, ला तुसल्लमू, मत सलाम करो अलल मुतकब्बिरीन, जो मुतकब्बिर लोग हैं उन पर सलाम मत करो। फ़इन्न फ़ी ज़ालिका ताज़ीमन, आप फरमाते हैं लहुम, इसमें उनकी ताज़ीम है। और एक हदीस मुबारक साथ वो कोट करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तवाज़ा लिगनिय्यि लिगिनाउ
ज़हबा सुलुसा दीनिही, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मालदार के सामने इस हाल की वजह से झुक जाए तो उसके दीन का बड़ा हिस्सा, उसके माल की वजह से झुक जाए तो उसके दीन का जो बड़ा हिस्सा है वो ज़ाया हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक आगे वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा, मत खुशामद करो, तवाज़ो करो, लेगनी, किसी गनी की, लेकिना हु उसकी मालदारी की वजह से, ज़हबा सुलुसा, यानी वो फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने ऐसा किया दीन ही, तो तुम्हारा जो है दीन का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस हदीस मुबारका को वो साथ कोट करते हैं और फरमाते हैं कि यही वजह है कि जो मुतकब्बिर इंसान है, ला तुसल्लमू, उस पर सलाम मत करो, अलल मुतकब्बिरीन पर सलाम मत करो, फ़इन्ना फ़ी ज़ालिका ताज़ीमन, इसमें अगर उनकी ताज़ीम लाजिम आती है, लहुम, उनकी ताज़ीम होती है इसमें, इस वजह से, इससे उनकी ताज़ीम लाजिम होती है, तो ताज़ीम की वजह से आप सलाम करते हैं, तो फिर ऐसे शख्स पर सलाम नहीं करना चाहिए, सलाम को आम करना चाहिए। लेकिन जो मुतकब्बिर लोग हैं, गरूर रखने वाले हैं, अपने आप को खान, चौधरी वगैरह वगैरह पता नहीं क्या से क्या समझते हैं, जैसे दुनिया के हर गली में आप को नज़र आता है कोई ना कोई फ़िरौन ज़रूर नज़र आता है, जिसकी फैक्ट्री है वो शायद ऐसा हो, किसी का कारोबार है वो ऐसा हो, जिस जगह जो छोटा या बड़ा मनसब रखता है, हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है कि वो फ़िरौन बन जाता है। मजहबी फील्ड देखें, दीगर लोगों में देखें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सलाम को आम करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये बात याद रखें, सलामु अलैकुम कहना भी दुरुस्त है, अस्सलामु अलैकुम कहना भी दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ अता फ़रमाए।